صدر آصف علی زرداری کا پاک فضائیہ کے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا دورہ۔ صدر مملکت کو پارک کے بارے میں تفصیلی بریفنگ۔ پارک کا مقصد خلائی، سائبر، آئی ٹی، مصنوعی ذہانت اور ایروسپیس میں نجی اور پبلک سیکٹر اداروں کو جوڑنا ہے۔ صدر مملکت نے جدید جنگی چیلنجز سے نمٹنے اور قومی تصویراتی اہمیت کے منصوبے کو ریکارڈ مدت میں مکمل کرنے پر پاک فضائیہ کی قیادت کے ویژن کو سراہا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے اسلام آباد میں چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ کی ملاقات۔ دونوں ممالک کے مابین اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم کے سفیر جیانگ زیڈونگ کو چین کے سال نو کی مبارکباد۔ امید ہے یہ نیا سال پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کے رشتے کو مزید مضبوط کرے گا اور دونوں ممالک کے عوام کے لیے خوشحالی لائے گا۔ وزیراعظم پاکستان اور چین کی لازوال دوستی نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے۔ اس دوستی کی جڑیں عوام میں ہیں۔ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے بہت اہمیت کا حامل۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں ترقی کے عمل کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی چین کے نئے قمری سال کی مناسبت سے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ مستحکم ہوتی معیشت پر تاجروں اور سرمایہ کاروں کا بڑھتا اعتماد۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مسلسل تیزی کا رجحان برقرار۔ 100 انڈیکس میں 1700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ دوران ٹریڈنگ انڈیکس 1,15,000 پر پہنچ گیا۔ زرعی شعبے کی ترقی سے معاشی خوشحالی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ پائیدار ترقی کے لیے گرین فائنانسنگ پر توجہ مرکوز کرنی ہے۔ افزائش حیوانات کے شعبے میں بہتری کے لیے اقدامات ناگزیر۔ زرعی شعبے کی بہتری کے لیے بینکنگ سیکٹر اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا ملتان میں ایگریکلچرل کریڈٹ ایڈوائزری کمیٹی سے خطاب۔ جدید تکنیکی ترقی کے لیے فن گرو کا مویشی پال کسانوں کے ساتھ اشتراک۔ ایس آئی ایف سی کی زیر معاونت مویشیوں کی افزائش کے لیے برازیلین ماہرین کی نگرانی میں جدید طریقے متعارف۔ آئی وی ایف اور ایمبریو ٹرانسفر ٹیکنالوجی سے مویشیوں کی پیداواری صلاحیت میں اضافے کی توقع۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی امریکی جریدے واشنگٹن ڈپلومیٹ کے معروف پروگرام ایمبیسڈر انسائیڈر سیریز میں شرکت۔ پاک امریکہ تعلقات، پاکستان کی معاشی ترقی، دو طرفہ تجارتی تعلقات اور پاکستان میں موجود سرمایہ کاری کے بے شمار مواقع پر اظہار خیال۔ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ بطور سفیر میری اولین ترجیح اقتصادی سفارتکاری کو فروغ دینا اور تجارتی روابط کو مستحکم کرنا ہے۔ رضوان سعید شیخ۔ سویلینس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ آئینی بینچ نے انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ فتنہ الخارج کے خلاف کامیاب کارروائیاں، دہشت گردوں کی پے در پے ہلاکتیں۔ کالعدم فتنہ الخارج نے دہشت گردوں کے موبائل فون استعمال پر پابندی عائد کر دی۔ فتنہ الخارج کے سرغنہ نور ولی محسود کی خفیہ گفتگو منظر عام پر فتنہ الخارج کے دہشت گردوں کی ہلاکتوں میں مسلسل اضافے کی وجہ سے پابندی عائد کی گئی۔ دفاعی ماہرین۔ ہر سال کی طرح آزاد کشمیر کے نوجوان یوم یکجہتی منانے کے لیے پرعزم۔ مقبوضہ کشمیر کے نہتے اور بے گناہ عوام کے ساتھ یکجہتی کے لیے 5 فروری کا دن منایا جاتا ہے۔ بھارت کے ناجائز قبضے کی بھرپور مذمت، خون کے آخری قطرے تک اپنے مظلوم بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، طلباء کا پیغام۔ واشنگٹن طیارہ حادثے میں تمام افراد کی ہلاکت کی تصدیق۔ ہیلی کاپٹر اور طیارہ ٹکرانے سے 67 افراد ہلاک ہوئے۔ فضائی حادثہ بڑا المیہ ہے، کوئی شخص زندہ نہ بچ سکا۔ واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی۔ صدر ٹرمپ۔ قیدیوں کے تبادلے کا تیسرا مرحلہ۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت حماس کی جانب سے 8 یرغمالی رہا ہونے والے 3 اسرائیلی شہری اور 5 تھائی لینڈ کے باشندے شامل۔ بدلے میں 30 بچوں سمیت 110 فلسطینی قیدی رہا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت، مزید 12 فلسطینی شہید۔ جھڑپوں میں صہیونی افواج بھی ہلاک۔ اقوام متحدہ کے ادارے انروا کا
اسرائیلی پابندیوں کے باوجود غزہ اور مغربی کنارے میں امدادی سرگرمیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ کینیڈا بھارت سفارتی تناؤ میں مزید اضافہ۔ بھارت کینیڈا کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے والا سب سے متحرک اور سرگرم ملک۔ بھارت وفاقی انتخابات اور جمہوری اداروں میں اپنے سفارتی عملے اور سہولت کاروں کے ذریعے مداخلت کرتا ہے، کینیڈا کے فارن انٹرفیرنس کمیشن کی رپورٹ۔ قذافی اسٹیڈیم پوری آب و تاب کے ساتھ سج گیا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کی میزبانی کے لیے تیار۔ 4 ماہ کی قلیل مدت میں نیا اسٹیڈیم جدید اور بین الاقوامی سہولتوں سے آراستہ۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا اسٹیڈیم کا تفصیلی دورہ، تمام فلورز، نئے ڈریسنگ رومز اور مختلف شعبوں کا معائنہ۔ چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ پاکستان میں ہونا اعزاز، اپنے وطن کی عزت میں مزید اضافہ کریں گے محسن نقوی۔ ملائیشیا میں آئی سی سی انڈر 19 ویمنز ورلڈ کپ، جنوبی افریقہ انڈر 19 خواتین نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیمی فائنل میں پروٹیز نے آسٹریلوی ٹیم کو 5 وکٹوں سے ہرایا۔ آسٹریلیا کی خواتین نے 20 اوورز میں 8 وکٹوں پر 105 رنز بنائے۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم نے ہدف 18.1 اوورز میں 5 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ میچز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ این ایل سی کی جانب سے گلگت بلتستان کے ضلع خزر میں پھنڈر سرمائی کھیلوں کا انعقاد۔ خواتین کی ٹیم پھنڈر ٹراؤٹس نے یاسین جانباز کو شکست دے کر آئس ہاکی چیمپئن شپ جیت لی۔ مردوں کے مقابلے میں پھنڈر ٹراؤٹس جی بی اسکاؤٹس کو ہرا کر فاتح قرار۔ ملک بھر سے بڑی تعداد میں شائقین کی شرکت۔ مقابلوں کا مقصد خطے میں روایتی کھیلوں اور سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ اور فرانس میں ATP 250 مونٹ پلیئر ٹینس ٹورنامنٹ، 3rd سیڈ اٹلی کے فلاویو کوبولی اور فرانس کے معمر کھلاڑی رچرڈ گیسکے کا دوسرے مرحلے میں سفر تمام۔ جیسپر ڈی جونگ اور کوالیفائر جارجیا کے نیکولوس بیسل ایشول کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئے۔ امریکہ کے الیگزینڈر کویسوک نے بھی لاسٹ 8 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ، اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں ہما ملک۔ کھیل کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسا قریشی، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ سرخیاں اپنے جانی خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے راولپنڈی میں پاک فضائیہ کے زیر اہتمام نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا دورہ کیا۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی دورے کے موقع پر موجود تھے۔ دورے کے دوران صدر مملکت کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک پاک فضائیہ کے ترقی کے سفر میں اہم سنگ میل ہے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک پاکستان میں علم اور ٹیکنالوجی پر مبنی معیشت کی بنیاد بننے کے لیے تیار ہے۔ پارک کا مقصد خلائی، سائبر، IT، مصنوعی ذہانت اور ایروسپیس میں سرکاری اور نجی شعبوں کے اداروں کو جوڑنا ہے۔ صدر مملکت کو مزید بتایا گیا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک دنیا کے بہترین ایروسپیس، سائبر اور IT کلسٹرز میں سے ایک بننے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ پارک ابھرتی ٹیکنالوجیز، تحقیق و تیاری اور اختراعی مراکز کے ساتھ قومی منظرنامے کو بدل دے گا۔ صدر مملکت نے پاک فضائیہ اور نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک میں جدید ترین تکنیکی ماحولیاتی نظام کی تعریف کی اور نمٹنے اور قومی تصویراتی اہمیت کے منصوبے کو بے مثال مدت میں مکمل کرنے پر پاک فضائیہ کی قیادت کے ویژن اور فعالیت کو سراہا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے پاکستان میں تعینات چین کے سفیر جانگ سی ڈانگ نے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم نے چینی سفیر کو سال نو کی مبارکباد دی اور نئے سال کی تقریبات میں چینی قیادت کے ساتھ ساتھ چین کے برادر عوام بشمول پاکستان میں مقیم تمام چینی شہریوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ نیا سال پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کے رشتے کو مزید مضبوط کرے گا اور دونوں ممالک کے عوام کے لیے خوشحالی لائے گا۔ چینی سفیر نے نیک تمناؤں کا اظہار کرنے پر وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا۔
वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है। दोनों मुल्कों के दरमियान जामे शराकतदारी को मजीद वसअत देने के लिए पुरअज़्म हैं। तफसील कंज़ा नकवी से। चीन के नए साल की मुनासबत से इस्लामाबाद में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की सदाबहार दोस्ती वक्त के साथ मजबूत से मजबूत तर हो रही है। इस दोस्ती की जड़ें अवाम में हैं और हमें इस पर फख्र है। ये दोस्ती सिर्फ कहने की हद तक लाजवाल नहीं है। इस दोस्ती का जो एक बुनियादी ढांचा है, जो हिस्ट्री के अंदर, कल्चर के अंदर डीप रूटेड है, और ये दोस्ती आने जाने वाले वक्तों की मोहताज नहीं है, ये बहार व खिज़ां की मोहताज नहीं है। वक्त अच्छा हो या बुरा हो, ये दोस्ती हमेशा जुड़ी रही है। हम इस पाक चीन दोस्ती के अमीन भी हैं, इस पाक चीन दोस्ती के कस्टोडियन भी हैं, और हमारा कौमी फरीज़ा है कि इस पाक चीन दोस्ती को हमने, जैसे हमें मिली थी अपनी पिछली जनरेशन से, हमने अगली जनरेशन को उससे भी ज़्यादा मजबूत तौर पे इसको ट्रांसफ़र करना है। इलाकाई तरक्की के लिए चीन के इक़दामात को सराहते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि बेल्ट एंड रोड मंसूबा समाजी और इक्तिसादी शोबों की बेहतरी के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। CPEC के दूसरे मरहले में तरक्की के अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का जो विजन है वन बेल्ट वन रोड का, मईशत के सम्राट इससे जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा हमारे लिए मौका है। CPEC फेज 1 मुकम्मल हुआ, CPEC फेज 2 की तरफ हम मूव किए, गवादर के एयरपोर्ट का इफ्तिताह हुआ है। तो इस बेल्ट एंड रोड के इर्द गिर्द बहुत सी कहानियां हैं, बहुत सी दास्तानें हैं, जो एक जीता जागता सबूत है पाक चीन दोस्ती का। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने चीन की हुकूमत और अवाम को नए साल की मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के लिए चीन के ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। दोनों मुल्कों की पायादार और लाजवाल दोस्ती को आगे आने वाली नस्लों को मुंतकिल करना हमारी जिम्मेदारी है। कंज़ा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स इस वक्त 1671 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,14,823 पर ट्रेड कर रहा है। दौरान ट्रेडिंग PSX 1,15,000 की हद भी अबूर कर गया। हमारे नुमाइंदा ज़मीर अब्बास इस वक्त हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। ज़मीर अब्बास, आगाह कीजिएगा, हुकूमत की मौजूदा मौशी पॉलिसियों की वजह से क्या क्या कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं? जी, कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज है और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी का सिलसिला बरकरार है। अब तक दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1,860 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद मार्केट 1,15,000 की हद अबूर करते हुए 1,15,071 पर ट्रेड कर रही है। हुकूमत की मौशी पॉलिसियों की वजह से हम देख रहे हैं कि जो रवा माली साल के पहले 6 माह में इन्फ्लेशन रेट है वो 7.1 रिकॉर्ड किया गया ऑन एवरेज, जबकि दिसंबर के महीने में इन्फ्लेशन रेट जो है तकरीबन 4.8 रिकॉर्ड किया गया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुकूमत ने जिस तरीके से अपनी हिकमत अमली शो की थी उसके रिजल्ट उनको मिलना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं ना सिर्फ इन्फ्लेशन कम हो रही है बल्कि इंटरेस्ट रेट भी उसके साथ बतदरीज कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से मौशी सरगर्मियों को फरोग हासिल हो रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे जो इदारे हैं वो भी अब काफी बेहतर परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं। खास करके सुई गैस की अगर हम बात करें तो SSGC ने जो माली साल है उसके तकरीबन पहले 6 माह में 6.5 अरब रुपए का जो है वो प्रॉफिट शो किया, जबकि उसी अरसे में अगर हम देखें कि 2023 के जो माली साल था उसमें तकरीबन 9.1 अरब रुपए का डेफिसिट या लॉस चल रहा था। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान रेलवेज ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो की है, खास करके फ्लाइट ऑपरेशंस में जो इनके करंट नंबर्स हैं वो पिछले माली साल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। हुकूमत की यही हिकमत अमली थी कि ना सिर्फ रेवेन्यू जनरेट किया जाए बल्कि इदारों को भी काफी प्रॉफिटेबल बनाया जाए, उसके साथ साथ अपने एक्सपोर्ट्स की इन्हांसमेंट करें, अपने रेमिटेंसेस की इन्हांसमेंट करें ताकि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर भी स्ट्रॉन्ग हो। माहिरीन भी यही कहते हैं कि इन पॉलिसीज की कंटिन्यूटी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अब इस लेवल पे आ चुके हैं कि बहुत जल्द हम मुल्क में मौशी इस्तेहकाम भी हासिल कर लेंगे। जी शुक्रिया ज़मीर अब्बास। नाज़रीन, दहशत गर्दों की हलाकत की वजह से फितनल खवारिज की क़यादत सिक्योरिटी तदाबीर में सख्ती लाने पर मजबूर हो गई है। कलअदम फितनल खारिज के सरगना खारजी नूर वली ने तमाम दहशत गर्दों के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। इस हवाले से नूर वली महसूद की खुफिया गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई है, जिसमें वो दहशत गर्दों को मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी की हिदायत दे रहा है। गुफ्तगू में यह कहते सुना जा सकता है कि सबको ये पैगाम पहुँचा दो कि मोबाइल सादा हो या इंटरनेट वाला, मुस्तकबिल में किसी को भी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये पाबंदी उस वक्त आयद की गई है जब फितनल खारिज के दहशत गर्दों की हलाकतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये पाबंदी इस जानिब इशारा करती है कि फितनल खारिज को पैदर पे हलाकतों का सामना है। मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी से साबित होता है कि दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ मौसर तरीके से जारी हैं।
زرعی شعبے کی ترقی سے معاشی خوشحالی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ ملتان میں ایگریکلچرل کریڈٹ ایڈوائزری کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا کہ پائیدار ترقی کے لیے گرین فائنانسنگ پر توجہ مرکوز کرنی ہے۔ افزائش حیوانات کے شعبے میں بہتری کے لیے اقدامات ناگزیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زرعی شعبے کی بہتری کے لیے بینکنگ سیکٹر اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ زراعت کا اوور آل کنٹریبیوشن ہماری معیشت میں 23% ہے، اور اس کنٹریبیوشن کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو بھی ایکشنز ریکوائرڈ ہیں وہ کرنے۔ تعداد کی جب بات کرتے ہیں آپ، ہمارے فوڈ ریلیٹڈ جو آئٹمز ہیں اس کی گروتھ جب ہوئی، اس کا ایکسپورٹس کے اندر کنٹریبیوشن بڑھا۔ کیا آپ رائس کی بات کر لیں جو ہمارا لیڈنگ ایکسپورٹ، ون آف دی لیڈنگ ایکسپورٹیبل آئٹم ہے، سبزیاں، فروٹ اور دوسرے جو اجناس ہیں ان کی ایکسپورٹ سے ہمیں کافی زرعی مبادلہ حاصل ہوا ہے۔ اور فون گرو کی جانب سے لائف سٹاک کے شعبے کو مستحکم بنانے کے لیے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ SIFC کی زیر معاونت فون گرو کمپنی کی جانب سے لائف سٹاک شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں مویشیوں کی افزائش کے لیے برازیلی ماہرین کی نگرانی میں جدید طریقے متعارف کرائے گئے۔ فون گرو کا مویشی پال کسانوں کی استعداد کار میں اضافے کے لیے عملی اقدام ہے۔ جدید فارمنگ کے طریقے مویشی پالنے والے کسانوں کے لیے نفع بخش ثابت ہوں گے۔ IVF اور ایمبریو ٹرانسفر ٹیکنالوجی سے مویشیوں کی پیداواری صلاحیت میں اضافے کی توقع کی جا رہی ہے۔ مویشی پال کسانوں کی جانب سے جدید افزائشی ٹیکنالوجی کی افادیت کو بے حد سراہا کیا۔ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت پیر تک ملتوی ہو گئی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ آئے روز افواج پاکستان کے جوان شہید ہوتے ہیں۔ افواج پاکستان پر حملوں میں سویلین ملوث ہیں۔ آرمی ایکٹ کی شقیں 21D1 اور 21D2 کا کوکل عدم قرار دے دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی فیصلے کی موجودگی میں فوج کے شہداء کو انصاف کیسے ملے گا۔ جسٹس ریٹائرڈ جواد ایس خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین نے دلائل دیے۔ اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے امریکی جرید واشنگٹن ڈپلومیٹ کے معروف پروگرام میں شرکت کی۔ پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے دو طرفہ تعلقات، ملکی معاشی ترقی، دو طرفہ تجارتی تعلقات اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع پر روشنی ڈالی۔ سفیر نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے غیر متزلزل عزم پر روشنی ڈالتے ہوئے واضح کیا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول کا ملک رہا ہے۔ انہوں نے افغان جنگ کے بعد کے حالات اور پاکستان کی سرحدی سلامتی کو یقینی بنانے کی مسلسل کوششوں پر بھی روشنی ڈالی۔ رضوان شیخ نے پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف جنگ میں بھی صف اول کا ملک قرار دیتے ہوئے کہا کہ IMF اور ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر ماحولیاتی موافقت حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ دو طرفہ سیکیورٹی، سرمایہ کاری اور ماحولیاتی استحکام کے شعبوں میں شراکت داری کو مزید مستحکم کریں گے۔ عالمی منظرنامے پر سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے امریکہ سے۔ واشنگٹن میں فوجی ہیلی کاپٹر سے ٹکرا کر تباہ ہونے والے مسافر طیارے میں سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ فضائی حادثہ ایک بڑا المیہ ہے جس میں کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا۔ امریکی عوام اس وقت غم میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حادثے کے وقت مطلع صاف تھا اور ہوائی جہاز کی روشنیاں بھی جل رہی تھیں۔ اس واقعے سے بچا جا سکتا تھا۔ ہیلی کاپٹر نے طیارے کے اوپر یا نیچے سے گزر جانے یا پھر واپس مڑ جانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ امریکی صدر نے کہا کہ اس واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی۔ واشنگٹن ایئرپورٹ کے قریب مسافر طیارہ فوجی ہیلی کاپٹر سے ٹکرانے کے بعد پوتوماک دریا میں جا گرا تھا۔ مسافر طیارے میں 64 مسافر جبکہ فوجی ہیلی کاپٹر میں 3 اہلکار سوار تھے۔ چین سمیت عالمی برادری نے امریکہ میں طیارہ حادثے پر افسوس کا اظہار کیا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ طیارے میں سوار 2 چینی باشندے بھی ہلاک ہوئے۔ امریکہ میں مسافر طیارے اور فوجی ہیلی کاپٹر ٹکرائے جانے کے واقعے میں ہلاک مسافروں میں ایک پاکستانی خاتون اسرا حسین بھی شامل تھیں۔ اسرا حسین کے شوہر حماد رضا نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ طیارہ ریگن ایئرپورٹ کے قریب پہنچا تو ان کی اہلیہ نے موبائل فون پر ٹیکسٹ پیغام کیا کہ ان کا طیارہ لینڈ کرنے والا ہے۔ تاہم اس کے بعد طیارے کو حادثہ پیش آ گیا۔ حادثے میں اہلیہ کو کھونے والے حماد رضا کا تعلق امریکہ کی ریاست میزوری سے ہے۔
जंग बंदी मुआहदे के तहत फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने 3 इजरायली समेत 8 यरगमालियों को रेड क्रॉस हुकाम के हवाले कर दिया है। यरगमालियों में 2 ख़वातीन समेत 3 इसराइली और 5 थाईलैंड के बाशिंदे शामिल हैं। मुआहदे के तहत इसराइल ने 110 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। इसराइल की जानिब से रिहाई पाने वालों में 30 बच्चे और 32 उम्र कैद की सज़ा पाने वाले फ़लस्तीनी शामिल हैं। रेड क्रॉस की गाड़ियाँ फ़लस्तीनी कैदियों को लेकर मगरबी किनारे पहुँची। फ़लस्तीनी कैदियों के गज़ा और मगरबी किनारे पहुँचने पर उनके अहल खाना ने इजहार मुसरत किया और शानदार इस्तकबाल किया। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली जारहियत जारी है। जनीन और तुलकरम इसराइली फ़ौजी और फ़लस्तीनियों के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं। जनीन के पनाहगुज़ीन कैंप में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से मज़ीद 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि झड़पों में एक इसराइली फ़ौजी भी मारा गया। इसराइल की पाबंदियों के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे उनरवा ने गज़ा और मगरबी किनारे में इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखने का ऐलान किया है। उनरवा के तर्जुमान जोनाथन फॉलर ने कहा कि उनरवा मकबूजा बैतुल मक़दस और मगरबी किनारे में इंसानी बुनियादों पर इमदादी काम जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि गज़ा में तकरीबन 5000 रज़ाकार इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी सदर के एलची ने कहा है कि गज़ा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और इसकी तामीर नौ में 10 से 15 साल लग सकते हैं। गज़ा का दौरा करने वाले स्टीव कोफ ने बताया कि शुमाली गज़ा में पानी है ना बिजली है, बुनियादी ढांचा ज़मींबोस हो चुका है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम गज़ा के लिए कोई ठोस मंसूबा नहीं ले आए। उन्होंने मज़ीद कहा कि वहाँ कुछ भी नहीं बचा है, वहाँ बहुत ज़्यादा धमाका खेज़ मवाद मौजूद है, वहाँ चलना ख़तरे से खाली नहीं है। अगर मैं वहाँ खुद जाकर ना देखता तो मुझे ये मालूम ना होता। शाम के नए सदर अहमद अश-शरा ने मुल्क में जामे अबूरी हुकूमत की तश्कील का अज़्म ज़ाहिर करते हुए कहा है कि हुकूमत में तमाम तबकों को नुमाइंदगी दी जाएगी। मनसब सदारत संभालने के बाद अहमद अश-शरा ने अपने पहले बाज़ाब्ता खिताब में कहा कि अबूरी हुकूमत मुल्क की इदारों का क़याम अमल में लाते हुए मुल्क का नज़्म व नस्क चलाएगी और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराएगी। सदर अहमद अश-शरा ने कहा कि एक मुख्तसर कानून साज इदारा कायम किया जाएगा जो नए इंतखाबात तक काम करता रहेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में एक कमेटी कायम की जाएगी जो कौमी मुकालमे के लिए एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करेगी जिसमें मुल्क के सियासी मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क का नया आइन मुरतब किया जाएगा ताकि मुल्क के निज़ाम को एक कायदे के मुताबिक आगे बढ़ाया जा सके। मशरकी यूक्रेन के शहर सोमी में एक रिहायशी ब्लॉक पर रूस के ड्रोन हमले में 9 अफराद हलाक जबकि 13 जख्मी हो गए। समय के गवर्नर व्लादिमीर आर्तिक ने कहा है कि इमदादी कारकुन इमारत से लाशों और जख्मी अफराद को बाहर निकाल रहे हैं। हमले में 5 अपार्टमेंट्स और 20 से जायद गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। ये हमला रूस के इलाके कर्क से मुत्तसिल खित्ते में किया गया है जहां यूक्रेन ने गुज़श्ता साल अगस्त में दरअंदाजी की थी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में रूस के हमले की मज़म्मत की है। कनाडा ने भारत पर मुल्क के जमहूरी और इंतखाबी इदारों में मुदाखलत की चश्मकुशा रिपोर्ट जारी कर दी है। कनाडा के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत पर नजर रखने वाले कमीशन ने कहा है कि कनाडा के विफाकी इंतखाबात और जमहूरी इदारों में भारत मुदाखलत करने वाला मुतहरिक और सरगर्म मुल्क है। फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन के सरबराह जस्टिस मैरी हुजी हॉक ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत अपने सिफारती अमले और एजेंट्स के जरिए कनाडा के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है। मुबैना मुदाखलत के बारे में ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब 1.5 बरस से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में खासी कशीदगी पाई जाती है। कनाडा से ये खबर देंगे आपको, शदीद बर्फबारी के बायस मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर है। कनाडा के बेशतर इलाके इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में हैं जबकि नियाग्रा की आबशार भी जमकर बर्फ बन चुकी है। शदीद सर्दी के बायस दर्जा हरारत -12 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। ताहम नियाग्रा फॉल्स का नया रूप देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद सर्द मौसम की परवाह किए बगैर वहाँ मौजूद है। एक बार फिर रुख करेंगे कौमी खबरों का। आपको बताएंगे कि हर साल की तरह इस साल भी आज़ाद कश्मीर के नौजवान यौम यकजहती कश्मीर बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। उनका कहना है कि कश्मीर के साथ उनका खून का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि भारत के ज़ेर एताब मासूम और निहत्ते कश्मीरियों से यकजहती के लिए 5 फरवरी का दिन मनाया जाता है। कश्मीरी तलबा ने भारत के मकबूजा कश्मीर पर नाजायज़ कब्जे की मजम्मत करते हुए कहा कि वो अपने आखिरी खून के कतरे तक कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में मुकीम कश्मीरियों से अपील की है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के निहत्ते अवाम से यकजहती के लिए इस दिन को बाहर निकले और दुनिया को ये पैगाम दें कि वो अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं।
कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जेलों में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की हालत इज़हार पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में अफसोस का इजहार किया कि नजरबंद रहनुमाओं और कारकुनों को जेलों में इलाज मुआवजे समेत तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हिंदुत्वा भारतीय हुकूमत नजरबंदों की कानूनी और तिब्बी ज़रूरियात को दानिस्ता नज़रअंदाज कर रही है, जो इंसानी हकूक़ के आलमी चार्टर की सरीहन खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और आर्मी रेड क्रॉस कमेटी पर जोर दिया कि वो मकबूजा जम्मू व कश्मीर और भारत की जेलों में बंद कश्मीरियों की हालत ज़ार का नोटिस लेकर उनकी रिहाई के लिए किरदार अदा करें। मीर अली में मादरे वतन का बहादुरी से दिफा करते हुए शहीद होने वाले मेजर हमजा इसरार शहीद की नमाज जनाजा गुज़श्ता रोज़ चकलाला गरियन रावलपिंडी में अदा की गई। मज़ीद तफसीलात आपको देंगे इस ब्रेक के बाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजिर है। हमने अपने आप को 3 बार मौत देखी। टाइम सी मैनू ऐसी कि मैं हूं कबर च चला गया, मैं नहीं बचना। फिर उन्होंने साडियां वीडियो बनाई, सानू मारिया, सानू कुटिया। अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें। एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था, वर्क वीजा। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाब के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का कयाम, मुल्कगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी एहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनो बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफ्टेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। मीर अली में मादरे वतन का बहादुरी से दिफा करते हुए शहीद होने वाले मेजर हमजा इसरार शहीद की नमाज जनाजा गुज़श्ता रोज़ चकलाला गैरिशन रावलपिंडी में अदा की गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क के बहादुर शहदा को ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि शहदा की अजीम कुर्बानियाँ आने वाली नस्लों के लिए पुरअमन और महफूज पाकिस्तान बनाने के कौमी अज़्म को तक़वियत देती हैं। उन्होंने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ है। एफसी ट्रेनिंग सेंटर लोरालाई में एफसी बलूचिस्तान नॉर्थ के 67 बैच के रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। तकरीब में कमांडर बलूचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम, IG FC बलूचिस्तान नॉर्थ मेजर जनरल आबिद मसर, कबायली अमायदीन और सिविल और मिलिट्री हुक्काम ने शिरकत की। पासिंग आउट परेड में 2280 रिक्रूट्स अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके पास आउट हुए। कमांडर बलूचिस्तान कोर का कहना था कि FC बलूचिस्तान के जवानों की कारकर्दगी बेहतर से बेहतर होती जा रही है। अमन अमान के क़याम में FC के जवानों की खिदमत मिसाली हैं। मेहमान खुसूसी ने कहा कि रिक्रूट्स बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लाएँ। तकरीब के आखिर में नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाले रिक्रूट्स में इनामात भी तकसीम किए गए। पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी है। खैबर की वादिया तीरा में 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में 2300 से ज़ायद मरीजों का मुआयना किया गया और उन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गईं। मरीजों में बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। इस मौके पर बच्चों में स्टेशनरी भी तकसीम की गई। इलाके की आवाम ने फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद पर पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ का शुक्रिया अदा किया। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि नौजवान मुल्क का सरमाया हैं, उन्हें तालीम के साथ साथ हुनरमंद भी बनाना है। UET, टेक्सला और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के माबैन हुआवे टेक्नोलॉजीज़ के ताउन से अटक में टेक्निकल रिसोर्स सेंटर के क़याम के हवाले से MOU पर दस्तखत की तकरीब हुई। इस तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि कैंपस के क़याम से पंजाब और KP के नौजवान मुस्तफ़ीद होंगे। इस सिलसिले में हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाएगी।
यूईटी टेक्सला के वाइस चांसलर ने कहा कि रिसोर्स सेंटर जंड में फरवरी के तीसरे हफ्ते से दाखिलों का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। लाहौर के करीब शाहदरा में रेलवे स्टेशन के करीब लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर के मुताबिक हादसे में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम हादसे की वजह से ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। CEO रेलवे आमिर अली बलोच के मुताबिक जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। शकरगढ़ के नवाही कस्बे नूरकोट में ज़राई माहिरीन और निजी कंपनी के ताउन से गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए काश्तकारों के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें किसानों की तरबियती वर्कशॉप हुई। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद रिजवान। गंदम की फसल मुल्की मईशत में बहुत अहमियत की हामिल है और इंसानी ग़िज़ा का अहम जुज़ भी। गंदम की काश्त और पैदावार बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है, जिसकी अहमियत और ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ज़राई माहिरीन की तरफ से काश्तकारों के लिए गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए शकरगढ़ में एक तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिनको काश्तकारों ने खुशाइन करार देते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। ऐसे प्रोग्रामों से मालूमात में इजाफा होता है और फसलों की पैदावार बढ़ने में मदद मिलती है। तरबियती ये मरला था, इसमें काफ़ी उन्होंने रहनुमाई दी। गंदम पाकिस्तान में लीडर की हैसियत हो सकती है, एक मैशत में अहम किरदार अदा करती है। किस तरह हम गंदम की पैदावार इजाफा कर सकते हैं और पाकिस्तान मैशत को ऊपर लेके जा सकते हैं। गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए सेमिनार का इनेकाद एक मुस्बत इक़दाम है, जो किसानों को जदीद ज़री तरीक़ों, बीजों के इंतखाब, खादों के इस्तेमाल और पानी के मौसर इंतज़ाम के बारे में आगाही फराहम करता है। मोहम्मद रमज़ान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, शकरगढ़। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का पहला मरहला पंजाब के दीगर शहरों की तरह लोधरा में भी प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। प्रोग्राम के तहत कुरानदाजी में लोधरा के 142 खुशनसीबों के घर तामीर किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर लोधरा में भी अपनी छत अपना घर प्रोग्राम शानदार तरीके से जारी है। पहले मरहले में ज़िला लोधरा से 2000 लोगों की दरख्वास्तें मसूल हुई, जिनकी कुरानदाजी की गई और ज़िला लोधरा के 142 खुश नसीबों के नाम निकल आए। इन खुश नसीबों को 15 लाख रुपए फराम कर दिए गए हैं और वो खुश नसीब अपने घरों की तामीर करा रहे हैं। अभी उनके बाकायदा कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन डोर स्टेप्स पर उनकी यकीनी बनाई गई है और इसी तरह फ़ेज़ 2 और आगे वाले मराहिल में भी हम कार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उनके CM पंजाब की तरफ से जो उनकी रकम है मुख्तस वो भी उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इस प्रोग्राम के तहत हुकूमत पंजाब ने अहल अफराद को शहरी इलाकों में 5 मरले और देही इलाके में 10 मरले तक के घर की तामीर के लिए आसान शराइत पर 15 लाख रुपए का बिला सूद कर्ज फराहम कर रही है, जिससे इन अफराद का ज़ाती घर का ख्वाब सच साबित हो गया है। मेरे पास इतने सोर्स नहीं थे कि मैं उसको बना सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह अब इस काबिल हो गया हूं कि मैंने ये छत डाल ली है, अपनी छत अपना घर की स्कीम से। मैं मरियम नवाज साहबा का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने ऐसा इकदाम करके हम जैसे गरीब लोगों के लिए भी छत मुहैया कर दी है। हुकूमत पंजाब के अपना छत अपना घर प्रोग्राम से मुतवसत तबके के लिए खुशियों का सूरज तलू होने लगा है, जिससे गरीब आवाम के अपने घर के ख्वाब पूरा हो रहा है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। ज़िला गुजरात में तजावज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिसमें दर्जनों गैर कानूनी तामीरात और तजावज़ात को मस्मार कर दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया ने तजावज़ात के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया है। तफसील बताएंगे गुजरात से हमारे नुमाइंदे फैज़ान अरशाद अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह गुजरात में भी जो है वो वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हदायत पर ज़िले नजायज़ तजावज़ात के खिलाफ जो है वो रैंड ऑपरेशन जारी है। इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया पूरी तरह मुतहर्रिक है। गुजरात के मुतअद्दिद जो है वो रोड्स पर जो है गैर ज़रूरी पार्किंग और खड़े वगैरह को हटाने का अमल जारी है। इस वक्त सरगोदा रोड पर नजायज़ तजावज़ात को ख़त्म करने का अमल जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। CM साहिबा की डायरेक्शन पे जो है वो पूरे गुजरात में जो है वो तजावज़ात के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी है और 90% तजावज़ात जो है वो क्लियर हो गई हैं। बाकी भी शहर के जो मेन 6 रोड्स थे वो उनको मुकम्मल क्लियर करवा लिया गया है। बहुत अच्छा वर्क हो रहा है और ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। CM पंजाब का इनिशिएटिव एक्शन है और मैं समझता हूँ कि ऐसे हर शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। जो देखिए ऑपरेशन हो रहा है जी बहुत अच्छा हो रहा है, इससे ये तजावज़ात साफ़ हो रही हैं, वो रोड भी साफ़ हो रहा है। जितनी ये सड़कें थी तंग थी, ये सारा रास्ता वगैरह खुल जाएगा, लोगों के लिए इसमें आसानी होगी। गुजरात की ताजिर बरादरी जो है वो भी इनके साथ भरपूर तावन कर रही है और इंशाल्लाह गुजरात जो है वो एक अब शहर नजर आएगा। फैज़ान अरशाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, गुजरात।
सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जिला ननकाना साहिब की तहसील सांगला हिल में निजी कंपनी का अमला मसरूफ अमल है। तफसील जानते हैं मोहम्मद अनवर अंसारी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जिला ननकाना साहब की तहसील सांगला हिल में आगाही रैली निकाली गई। जदीद मशीनरी और अफरादी कुव्वत से आरास्ता मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत तहसील सांगला हिल के शहरी और दही इलाकों में कूड़ा क्रिकेट के डेरों की तल्फी हंगामी बुनियादों पर जारी है। रोज का 400 से 500 टन कूड़ा जो उठाया जाता है, जो कि जीरो वेस्ट के वाले से भी आता है और रेगुलर ऑपरेशन में भी आता है। इलाका के लोगों को साफ सुथरे माहौल की फराहमी के सिलसिले में तहसील भर में जदीद ऑपरेशनल गाड़ियों के साथ साथ 210 सैनिटरी स्टाफ सफाई सुथराई की खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं कि आप बाजार में या मुझे फसलों में कोशिश करें कि कूड़ा अपने दुकानों के सामने रखें और हमारी कोशिश है कि सारी दुकानों के आगे बास्केट हो और हमारे जो डब्बे आते हैं डोर टू डोर वो फौरन आके उसको उठाने मॉर्निंग में। उम्मत पंजाब के विजन पर सांगला हिल शहर और देहाती इलाकों से रोजाना की बुनियाद पर सफाई का अमला 400-500 टन के करीब कूड़ा क्रिकेट उठाकर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के सुथरा पंजाब विजन पर अमल पैरा है। मोहम्मद अनवर अंसारी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, सांगला हिल। पंजाब हुकूमत ने लाइव स्टॉक शोबे की तरक्की के लिए लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा कर दिया। जिला विहाड़ी में अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आला पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड्स मवेशी पॉल हजरात में तकसीम किए। तफसील आपको बताएंगे विहाड़ी से बहादुर हुसैन। महकमा लाइफ स्टॉक विहाड़ी के ज़ेरे एहतमाम लाइफ स्टॉक कार्ड तकसीम करने के लिए तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकन कौमी असम्बली सैयद साजिद सलीम मेहंदी, अरकान सूबाई असम्बली मियां साकिब खुर्शीद और मलक नौशेर अंजम लंगड़ियाल समेत किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अरकान पार्लियामेंट ने मवेशी पाल किसानों में लाइव स्टॉक कार्ड तकसीम किए। अब तक जिला विहाड़ी के 282 मवेशी पाल काश्तकार अपने लाइव स्टॉक कार्ड वसूल कर चुके हैं। तकरीब से खिताब करते हुए अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि पंजाब की तारीख में पहली बार लाइव स्टॉक कार्ड होल्डर को 2,70,000 रुपए तक बिला सूद कर्जा दिया जा रहा है। जिला भर में यूनियन सतह पर मवेशी पाल काश्तकारों के लिए मालूमाती काउंटर्स कायम कर दिए हैं, जबकि दूसरी जानिब मवेशी पाल हजरात ने लाइव स्टॉक कार्ड की फराहमी पर वज़ीर-ए-आला पंजाब के इक़दाम को सराहा है। बहादुर हुसैन, PTV न्यूज़, विहाड़ी। वज़ीर-ए-आला पंजाब के धी रानी प्रोग्राम के तहत बहावल नगर में भी 51 मुस्तहिक बच्चियों की शादी की तकरीब हुई। तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे राना फैसल रहमान। बहावल नगर में भी वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के पंजाब धी रानी प्रोग्राम के तहत 51 इज्तिमाई शादियों की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट, मेम्बरान सूबाई असम्बली सुहेल खान जाहिद, मियाँ इनाम बारी लालिका, काशिफ नवीद पनसोता, मियाँ अब्दुल गफार कालुका वटू समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। हुकूमत के पास जो वसाइल होते हैं, इन बेटियों और बेटों का हक है, हम इनको धी रानी प्रोग्राम के तहत फी कपल्स को एक बेटी को 1 लाख रुपए सलामी दे रहे हैं और CM साहिबा की तरफ से गिफ्ट्स दे रहे हैं। प्रोग्राम के तहत हर जोड़े को 1 लाख रुपए सलामी के साथ साथ घरेलू जरूरियात का सामान दिया गया। शादी की तकरीब में दुल्हनों ने मुसर्रत का इजहार किया। तकरीब के इख्तिताम पर महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से शुरका को ज़ोहराना पेश किया गया और फनकारों की कवाली ने महफिल को 4 चांद लगा दिए। राना फैसल रहमान, PTV न्यूज़, बहावल नगर। कसूर में तालिबात को किताबें पढ़ाने के साथ साथ अमली ज़िंदगी में साइंसी रुझान को बढ़ाने के लिए साइंसी एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, जिसमें तालिबात ने बेहतरीन तख्लीकी सलाहियतों का नमूना पेश किया। कसूर से चौधरी वसीम खुशी की रिपोर्ट देखिए। कसूर के निजी स्कूल में कुतुब की दुनिया से बच्चों को बाहर निकालकर इनकी तख्लीकी सलाहियतों को निखारने का मौका फराहम किया गया। तालबात के बनाए गए साइंस एग्जीबिशन में ऐसे मॉडल्स बनाए गए कि नुमाइश देखने वाले भी वर्ताए हैरत में पड़ गए। इसका जो मेजर पर्पस है बच्चों को रटा सिस्टम से निकालकर हमें उनको प्रैक्टिकल वर्क की तरफ लेके आना, ताकि वो अपनी हर चीज फ्यूचर लाइफ है जो उनका एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको इजी वे में अंडरस्टैंड कर सकें। जिस तरह हम किताबों में पढ़ते हैं वो हमें बेहतरीन अंदाज में समझ नहीं आता, लेकिन जब हम अमली तौर पर उसे अंजाम देते हैं तो हमें कारकर्दगी बेहतर होती है हमारी और हमें एबिलिटी आती है कि हम कोई काम कर सकें। साइंस एग्जीबिशन में तालबात ने वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, ग्लोबल वार्मिंग, सोलर एनर्जी सिस्टम, विंड एनर्जी, हाइड्रोलिक ब्रिज, वायरस, बैक्टीरिया व दीगर बायोलॉजिकल मॉडल्स बनाकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। चौधरी वसीम खुशी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कसूर।
और जिला सजावल में सरसों की बहार छा गई है। पीले फूलों के लहलहाते खेतों ने माहौल को सहरज़दा कर दिया। ये जर्द फूल अपनी खूबसूरती के साथ साथ कुदरती फवाइद भी फराहम करते हैं। इसी बारे में देखते हैं सजावल से मिर्जा कमर हसन बेग की ये रिपोर्ट। सरसों के लहलहाते खेतों ने माहौल को एक सहरज़दा मंजर में बदल दिया है। ये जर्द फूल जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ कुदरती फवाइद भी फराहम करते हैं, इसलिए काश्तकारों की अव्वलीन तरजीह बन चुके हैं। सरसों की फसल मौसम सरमा में काश्त की जाती है और ये सिर्फ खेतों की जीनत नहीं बल्कि किसानों के लिए भी एक अहम माशी जरिया है। सरसों के तेल की तलब हमेशा से रही है और ये सेहत के लिए भी फायदेमंद है। सरसों की फसल इस बार हमने बड़े पैमाने पे की है और इस बार मुनाफा भी बहुत अच्छा हुआ है माशाल्लाह से, और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें दवाई वगैरह मिक्स नहीं होती, मिलावट कोई भी नहीं होती। सरसों की फसल न सिर्फ हमारे माहौल को दिलकश बनाती है बल्कि ज़री माश पर भी अच्छा असर रखती है। इस फसल से काश्तकार और किसान दोनों में खुशी की लहर दौड़ उठी है। मिर्जा कमर हसन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सजावल। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम रात के औकात में बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश गिलगित बल्तिस्तान बगरोट में 2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -9, कल्लात -8, गोपिस -7, कालाम -6, स्कर्दू -5, कोयटा बगरोट -4, मालम जब्बा, अस्तोर और पाड़ा चनार में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।